ایک چھوٹا سا گھر، کچی دیواریں، اندر ایک لڑکا فرش پر بیٹھا لکڑی کی چھوٹی سی کھلونا کشتی کو پانی سے بھرے ٹب میں چلا رہا تھا۔ امی دیکھیں، میری کشتی کتنی تیز ہے، وہ خوشی سے بولا۔ ماں مسکرائی، زیادہ دریا کے قریب مت جانا، سنا ہے وہاں ایک غصے والا ملاح ہے۔ لڑکا ہنسا، میں ڈرتا نہیں۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ اکثر دریا کے کنارے جا کر کشتیوں کو دیکھا کرتا تھا، خاص کر سلطان کی کشتی۔ سلطان کی کشتی سب سے تیز تھی، سب سے مضبوط۔ حمزہ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا، ماں نے آواز دی، جلدی واپس آنا۔ حمزہ نے دور سے ہاتھ ہلایا، بس تھوڑی دیر۔ وہ کنارے پہنچا تو سلطان مسافروں کو بٹھا رہا تھا۔ مجھے بھی لے چلو، حمزہ نے التجا کی۔ سلطان نے تیز نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ حمزہ نے جیب سے چند سکے نکالے۔ اتنے ہیں؟ سلطان نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اتنے میں تو آدھی کشتی بھی نہیں ملتی۔ ہٹو پیچھے۔ حمزہ نے ضد کی، میں خاموش بیٹھوں گا، جگہ بھی کم لوں گا۔ سلطان کا مزاج پہلے ہی خراب تھا، کہا نہ ہٹو۔ حمزہ کشتی کے کنارے کے قریب آ گیا۔ بس ایک چکر۔ سلطان نے جھنجھلا کر اسے بازو سے پکڑا۔ سمجھ نہیں آتی بات، اور ایک زور کا دھکا دیا۔ حمزہ کا پاؤں پھسلا، وہ سیدھا دریا میں جا گرا۔ بچاؤ، اس کی چیخ نکلی۔ مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ ارے بچے کو نکالو، ایک عورت چیخی۔ سلطان چند لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر غرا، خود آیا تھا، خود سنبھالے۔ حمزہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ پانی اس کے منہ میں بھرنے لگا، آنکھوں میں خوف، ہاتھ فضا میں لہراتے۔ دور سے دو ملاح دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک نے پانی میں چھلانگ لگا دی، دوسرے نے رسو پھینکی۔ کچھ لمحوں بعد حمزہ بے ہوش حالت میں نکالا گیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارے گئے، پانی باہر نکلا۔ وہ کھانستے ہوئے ہوش میں آیا۔ سلطان کشتی موڑ چکا تھا، وہ جا چکا تھا۔ حمزہ کو گھر لایا گیا۔ ماں کی چیخیں گلی میں گونجتی رہیں، میرا بچہ۔ حمزہ کئی دن تک بستر پر رہا، آنکھوں میں خاموشی آ گئی تھی۔ وہ پہلے جیسا شوق نہ رہا۔ ایک رات اس نے ماں سے کہا، امی، میں ایک دن پھر کشتی میں جاؤں گا۔ ماں نے خوف سے اسے دیکھا، کبھی نہیں۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ جاؤں گا، مگر ڈر کر نہیں۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ بڑا ہونے لگا۔ اس نے تیرنا سیکھا، دریا کی لہروں سے دوستی کر لی۔ وہ گھنٹوں پانی میں رہتا۔ ایک دن وہ دریا کے بیچ تک گیا، آنکھیں بند کیں۔ میں ڈرا نہیں تھا، مجھے دھکا دیا گیا تھا سالوں بعد۔ آج کا دن، دریا کے اوپر دوپہر کی دھوپ آگ بن کر برس رہی تھی۔ پانی کی سطح سے چمک ایسی اٹھ رہی تھی جیسے شیشے کے ٹکڑے تیر رہے ہوں۔ لکڑی کی پرانی کشتی میں کھڑا سلطان چپو زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی اور آنکھوں میں چڑچڑاہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ جلدی کرو سلطان، دھوپ تیز ہو رہی ہے، پیچھے بیٹھے مسافر نے کہا۔ سلطان نے غصے سے گردن موڑی، میں اکیلا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے؟ کشتی خود نہیں چلتی۔ مسافر خاموش ہو گیا۔ سلطان نے دانت پیس کر چپو اور زور سے چلایا۔ دریا کے بیچ میں پہنچتے ہی ہوا بند ہو گئی۔ فضا میں گھٹن سی پھیل گئی۔ اچانک کشتی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ ایک عورت گھبرا کر بولی۔ سلطان نے نیچے جھانکا۔ کشتی کی تہ کسی ڈوبے ہوئے درخت کی موٹی شاخ میں اٹک گئی تھی۔ سب بیٹھے رہو، سلطان غرا۔ کوئی ہلا تو کشتی الٹ جائے گی۔ ایک بوڑھا آدمی بولا، بیٹا آہستہ سے نکالو،
घबराहट में कुछ न करना। सुल्तान ने तेज लहजे में जवाब दिया, मुझे मत सिखाओ क्या करना है। वो कुश्ती के किनारे पर झुका और चप्पू से शाख को हटाने लगा। पसीना आंखों में जा रहा था, हाथ फिसल रहे थे। मुसाफिरों में सरगोशियां होने लगीं। अल्लाह खैर करे, धूप में अगर यही हाल रहा तो क्या होगा। सुल्तान ने चप्पू पूरी ताकत से मारा। शाख हिली मगर कुश्ती खतरनाक अंदाज में एक तरफ झक गई। औरत चीखी, हम डूब जाएंगे। सुल्तान गुस्से से बोला, खामोश रहो सब। इसी लम्हे एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, मैं पानी में उतर जाता हूं, नीचे से धकेल देता हूं। सुल्तान ने तीखा जवाब दिया, कोई नहीं उतरेगा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन नौजवान ने बगैर सुने पानी में छलांग लगा दी। चंद लम्हों बाद इसने नीचे से शाख को धकेला। सुल्तान ने चप्पू से जोर लगाया। शाख हटी और कुश्ती आजाद हो गई। नौजवान हाँफता हुआ वापस चढ़ा। कहा था ना, मिलकर करें तो आसान होगा। सुल्तान ने नजरें चरा लें। अपनी जगह बैठ जाओ। कश्ती दोबारा चल पड़ी। कुछ ही फासले पर आसमान का रंग बदलने लगा। तेज हुआ चल पड़ी। दौर से बादलों की गरज सुनाई दी। एक बच्चा बोला, उम्मी, तूफान आ रहा है। सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और बुड़बुड़ाया, आज ही आना था। हुआ ने जोर पकड़ा। कश्ती डगमगाने लगी। पानी के छींटे अंदर आने लगे। सब लोग वजन एक तरफ न डालो, सुल्तान चीखा। एक नौजवान लड़का घबराकर इधर अलिफादेर हिलने लगा। मैं गिर जाऊंगा। सुल्तान ने इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। बैठ जाओ सीधे। हुआ का एक तेज झोंका आया। कश्ती बुरी तरह हिली। एक संदूक पानी में गिरने को था। बूढ़े ने इसे पकड़ लिया। ये मेरा सामान है, बूढ़ा चीखा। सुल्तान ने गुस्से से कहा, जान बचाओ पहले। बारिश शुरू हो गई। सुल्तान ने चप्पू मजबूती से थाम लिया। इसके हाथ सुर्ख हो गए थे। वो जोर जोर से चप्पू चलाता रहा। किनारे की तरफ मोड़ो, किसी ने कहा। मुझे मालूम है, सुल्तान झलाया। एक लम्हे को चप्पू इसके हाथ से फिसला, मगर उसने फौरन पकड़ लिया। किश्ती लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती रही। काफी जिदोजहद के बाद वो निस्बतन पुरसुकून हिस्से में पहुंच गए। बारिश हल्की पड़ गई। सब ने सुकून का सांस लिया। औरत ने कहा, अल्लाह ने बचा लिया। सुल्तान खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर थकन और चिड़चिड़ाहट दोनों नुमायां थीं। शाम ढलने लगी। धूप की जगह सुनहरी रोशनी फैल गई। किनारे का गांव अब ज्यादा दूर नहीं था। अचानक कश्ती के पेंदे से अजीब सी आवाज आई। ठक ठक। सुल्तान चौंका। उसने झक कर देखा। लकड़ी की एक तख्ती दरार से चटक रही थी और अंदर से पानी रिसने लगा था। पानी अंदर आ रहा है, एक लड़की चीखी। सुल्तान ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ले। कोई कपड़ा है? जल्दी दो। औरत ने अपना दोपट्टा फाड़ कर दिया। नौजवान ने अपना रुमाल निकाला। बूढ़े ने थैले से पुराना कपड़ा निकाला। सुल्तान ने सब कपड़े ठूंस कर दरार बंद करने की कोशिश की। कोई हाथ लगाने की कोशिश न करे। पानी फिर भी रस रहा था। नौजवान बोला, हम बारी बारी पानी बाहर निकालते हैं। सुल्तान ने तेज आवाज में कहा, मैं कह रहा हूं, मैं संभाल लूंगा। मगर पानी बढ़ने लगा। बच्चे रोने लगे। बूढ़े ने बाल्टी उठाई और पानी बाहर फेंकने लगा। नौजवान ने भी साथ दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब हाथ बटाने लगे। सुल्तान ने चंद लम्हे सबको देखा, फिर खामोशी से चप्पू संभाल कर किनारे की तरफ पूरी ताकत से कश्ती मोड़ दी। और जोर लगाओ, नौजवान ने कहा। सुल्तान ने कुछ न कहा, बस चप्पू चलाता रहा। इसकी सांस तेज हो रही थी। बाजू कांप रहे थे। आखिरकार कुश्ती किनारे से टकरा गई। सब ने जल्दी जल्दी उतरकर जमीन पर कदम रखा।
बच्चे रोते हुए अपनी माँओं से लिपट गए। बूढ़ा सुल्तान के करीब आया। बेटा, आज अगर सब एक दूसरे का हाथ न पकड़ते तो शायद हम न बचते। सुल्तान ने कोई जवाब ना दिया। वो कुश्ती के किनारे बैठ गया, गहरी सांस लेता हुआ। मुसाफिर एक एक करके जाने लगे। वो नौजवान जो पानी में उतरा था, जाते जाते रुका। सुल्तान, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी गुस्सा छोड़ना पड़ता है। सुल्तान ने इसकी तरफ देखा, मगर कुछ ना बोला। रात होने लगी। दरिया पुरसुकून था। सुल्तान ने कश्ती की टूटी तख्ती को देखा, हाथ से छुआ। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। बाबा! सुल्तान चौंका। उसने मोड़कर देखा। वही नौजवान खड़ा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम फिर आ गए, सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा। नौजवान मुस्कुराया। आपने पहचाना नहीं? सुल्तान की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? नौजवान ने आहिस्ता से कहा। मैं वही हूं जिसे अपने बरसों पहले इसी दरिया में धक्का दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने किराया कम देने की बात की थी। सुल्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है। नौजवान ने दरिया की तरफ इशारा किया। आपको याद नहीं? वो लड़का तैरना नहीं जानता था। सुल्तान के हाथ कांपने लगे। मैं डूबा नहीं था, सुल्तान। कुछ मल्लाहों ने मुझे बचा लिया था। आज मैं वापस आया था, देखने के अब बदले आ नहीं। सुल्तान खामोश रह गया। दरिया की लहरें हल्की हल्की आवाज कर रही थीं। नौजवान ने कहा, आज आपके पास मौका था। 3 बार मुश्किल आई। आप हर बार अकेले लड़ना चाहते थे, मगर आखिरकार सबके सहारे से बच गए। सुल्तान की आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने गलती की थी, इसकी आवाज भारी हो गई। नौजवान ने एक कदम पीछे हटाया। गलती का बोझ इंसान को अंदर से डुबो देता है। इतना कहकर वो पलटा और अंधेरे में चल दिया। सुल्तान तेजी से उठा। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब ना आया। सुल्तान ने दौड़कर किनारे तक देखा। वहां कोई न था, न कदमों के निशान, न कोई साया, सिर्फ पुरसुकून दरिया। और वही जगह जहां बरसों पहले एक लड़का पानी में गिरा था, अचानक इसे दूर पानी में एक झलक नजर आई। जैसे कोई लड़का लहरों के बीच खड़ा हो, फिर धीरे धीरे पानी में तहलील हो गया। सुल्तान के हाथ से चप्पू गिर गया। वही नौजवान जिसने तूफान में सुल्तान की मदद की थी, वही हमजा था। इसे याद आया, जिस दिन हमजा को निकाला गया था, मल्लाहों ने कहा था, बच्चा सांस ले रहा है मगर हालत नाजुक है। और फिर अगले दिन खबर आई थी। वो रात को चल बसा। सुल्तान ने कभी तस्दीक नहीं की थी, कभी पूछने नहीं गया था। आज दरिया ने जवाब दे दिया था। सुल्तान घुटनों के बिल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। इसके सामने दरिया की सतह पर वही छोटी खिलौना कश्ती तैरती हुई दिखाई दी, जो बरसों पहले हमजा के हाथ में थी। मगर अगले ही लम्हे वहां कुछ न था, सिर्फ खामोश पानी। और सुल्तान, जो पहली बार वाकई अकेला था, आज उसे एहसास हुआ था कि गुस्सा अंधा कर देता है।